سخت سردی اور منجمد درجہ حرارت کے باوجود بڈگام اور نگروٹا میں آج ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل پرجوش انداز میں مکمل ہوا۔ حلقے کے متعدد پولنگ اسٹیشنز کے باہر ووٹروں کی لمبی قطاریں دیکھی گئی، جن میں نوجوانوں اور پہلی بار ووٹ دینے والوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ووٹرز نے کہا کہ وہ تبدیلی اور ترقی کی امید کے ساتھ اپنا جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں۔ پولنگ کا عمل صبح 7 بجے شروع ہوا اور سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان شام 6 بجے تک بلا رکاوٹ جاری رہا۔ اگر نگروٹا میں 74.61% جبکہ بڈگام میں 49.89% پولنگ ریکارڈ ہوئی ہے۔ اور یہ اس وقت سیدھے رخ کریں گے سری نگر کا ہمارے نمائندے اسپیشل کرسپونڈنٹ پرویز بٹ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ پرویز، جس طرح سے آج نگروٹا اور بڈگام میں انتخابات ہوئے ہیں، کافی سیاسی گہمہ گہمی رہی، کس طرح کے حالات رہیں، اپڈیٹ دیں، کیونکہ پرسنٹیج تو کافی بہتر بتا رہا ہے، خاص کر نگروٹا کی ہم بات کریں۔ اب بالکل جیلانی، اگر ہم بات کریں تو صبح سویرے سے ہی لوگ اپنی قطاروں میں جڑ گئے تھے اپنے پولنگ بوتھ کے سامنے اور اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کے لیے وہ نکلے ہوئے تھے۔ یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جو دونوں یہ سیٹیں ہیں یہ کافی اہمیت کے حامل ہیں، یہ دونوں سیٹیں، کیونکہ جس طرح کا پولیٹیکل سینیریو ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا ہے، تو دونوں سیٹوں پہ کافی گہمہ گہمی چل رہی تھی۔ خاص طور اگر ہم دیکھیں کانٹے کی ٹکر جو ہے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کی تھی یہاں بڈگام سیٹ میں، اور وہاں نگروٹا کی بات کریں تو نیشنل کانفرنس اور بی جے پی کا جو کینڈیڈیٹ ہیں وہاں پہ دیویانی رانا، ان کے بیچ کڑا مقابلہ تھا۔ لیکن ووٹنگ پرسنٹیج ایک بار پھر سے جو بہت ہی اچھی انکریجنگ ووٹنگ پرسنٹیج آئی ہے، حالانکہ بڈگام کی جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے وہ 2024 کی ووٹنگ پرسنٹیج سے 2% کم بتایا جا رہا ہے، لیکن اس کا ریزن ہم سب کو پتا ہے کہ جو آغا روح اللہ ممبر پارلیمنٹ کا اس چناؤ سے دوری بنائے رہنا تھا، تو کچھ حد تک اس کا بھی امپیکٹ رہا ہے۔ لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں تو بہت اچھا ووٹر ٹرن آؤٹ رہا، اور جمہوریت کے جشن میں جو بڈگام کے لوگ ہیں اور نگروٹا کے لوگ ہیں وہ پوری طرح سے اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا، اور اپنے نمائندے کو چننے کے حوالے سے وہ صبح سے ہی قطاروں میں لگے ہوئے تھے۔ سیکورٹی کا اگر ہم بات کریں، سیکورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے تھے، کیونکہ کل جو دلی میں جو بلاسٹ ہوا اس کے بعد آلریڈی ریڈ الرٹ پہ پورا جموں کشمیر لگا ہوا ہے۔ اس کے حوالے سے دگنے جو سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے ہر ایک جگہ پہ، چاہے بڈگام کی بات کریں یا نگروٹا کی بات کریں، دونوں جگہ اچھے خاصے سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے، اور لوگوں کا بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا مین مقصد یہی تھا کہ جو ان کے مسئلے مسائل ہیں، بجلی، سڑک، پانی، نوکریاں، بے روزگاری، ان سب چیزوں کے حل کے لیے وہ ووٹ ڈالنے نکلے تھے۔ بالکل پرویز، لوگوں نے اپنا فیصلہ کر دیا ہے۔ 74.61% نگروٹا میں جب بہت بہتر فیصد رہا، اور بڈگام میں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 1-2% یہاں پر کم ہے، لیکن قسمت کا فیصلہ 14 کو سامنے آ ہی جائے گا۔ بہت بہت شکریہ پرویز اس جانکاری کے لیے۔ نیشنل کانفرنس کے امیدوار آغا محمود نے بڈگام ضمنی انتخاب میں اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد اپنی پارٹی کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے آغا محمود نے کہا کہ بڈگام کے لوگوں نے اپنے ووٹوں کے ذریعے بات کی اور ان کی آواز بلند اور صاف سنی جائے گی۔ بڈگام ضمنی انتخاب میں اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار آغا منتظر نے اپنی جیت کے بارے میں پختہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے اعتماد کو بیلٹ باکس میں بند کر دیا گیا۔ ووٹنگ کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے آغا منتظر نے کہا کہ عوام کا اعتماد بند ہو چکا ہے، ووٹرز نے ہمارے ویژن اور قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار دیویانی رانا نے نگروٹا ضمنی انتخاب میں اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد اپنی پارٹی کی کارکردگی کے بارے میں امید ظاہر کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رانا نے کہا کہ مجھے نگروٹا کے لوگوں پر پورا بھروسہ ہے۔ بڈگام اسمبلی ضمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ سخت حفاظتی انتظامات کے تحت کشمیری مائیگرنٹ ووٹروں کے لیے ITI کالج ادھمپور میں منعقد ہوئی۔ پولنگ حکام، سیکورٹی اہلکار اور مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے پولنگ اسٹیشن پر موجود تھے تاکہ ووٹنگ کے عمل کو پرامن اور احسن طریقے سے انجام دیا جا سکے۔ دہلی کار بلاسٹ کے سلسلے میں جموں کشمیر پولیس لکھنؤ پہنچی۔ مدیاؤں اور کھنڈاری بازار کے علاقوں میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ واضح ہے کہ دہلی کار بلاسٹ کیس اور فرید آباد دھماکہ خیز مواد کی بازیابی کے سلسلے میں NIA، ATS اور جموں کشمیر پولیس کی ٹیم ڈاکٹر شاہین شاہد کی رہائش گاہ پر بھی پہنچی اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔
सिविल सोसाइटी हंदवाड़ा ने ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवाड़ा, फ्रूट एसोसिएशन हंदवाड़ा और दीगर वफूद के इश्तराक से मेन चौक हंदवाड़ा में मोमबत्तियों के साथ एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें दिल्ली के लाल किले के करीब हालिया कार धमाके में शदीद मजम्मत की गई। शुरका ने मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार करते हुए मुल्क में अमन और इत्तेहाद की अपील की। में ब्लास्ट हुआ, उसमें बहुत सारे जान चला गया। तो हम इस चीज को हंदवाड़ा ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवाड़ा के, ट्रांसपोर्ट तमाम एसोसिएशन हंदवाड़ा के, सिविल सोसाइटी हंदवाड़ा के, फ्रूट मंडी की जितना प्रेसिडेंट साहब है सब यहाँ हैं, हम इस चीज को कंडम कर रहे हैं हंदवाड़ा मेन चौक से। और हंदवाड़ा ट्रेडर्स फेडरेशन इस चीज को बिल्कुल कंडम कर रहा है, इस चीज को मजम्मत कर रहा है कि हम चाहते हैं देश में अमन होना चाहिए, अमन के साथ हर चीज रहना चाहिए। तो बट ये बदकिस्मती से कल जो वाक़ा हुआ, हम इस चीज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, ये ऐसे वाक़ा नहीं होना चाहिए। देश में अमन होना चाहिए, अमन के साथ हर चीज ठीक है। तो बस यही हमारे एक मजम्मत की, आज हमने एक प्रोटेस्ट यहाँ पे किया, कैंडल मार्च किया यहाँ पे, हम इस चीज के साथ हैं। जो भी कल दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, तो ये इस चीज के लिए हमारे दिल भी इस वक्त रेजे रेजे हो चुके हैं, हमारी आंखें नम है कि नहीं होना चाहिए था ऐसा। तो हम इस गम के साथ हैं, हम दिल्ली वालों के साथ हैं, हम जितने भी वहाँ पे शहीद हो चुके हैं, हम लवाहिकीन के साथ इज़हार यकजहती कह रहे हैं कि जो कल जो ये वाक़ा हुआ, हमने पहले भी कहा कि टेररिज्म जो है ये किसी मजहब में इसको इजाजत नहीं मिली है, इसको फिलफोर बंद किया जाए, नहीं होना चाहिए ऐसे। बेगुनाहों की जानें जा रही है, बच्चे यतीम हो रहे हैं, हमारी बहनें विधवा हो रही है। तो ये जो टेररिज्म है इसका अब खात्मा हो चुका है। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे अभी भी है जो सरकार को चाहिए कि उनको भी तह तक उनको निकाल बाहर करना है, उनको बाज़ाब्ता तौर देखना है कि ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। दिल्ली कार बम धमाके के आज जम्मू कश्मीर में सियासी, समाजी, कारोबारी व मजहबी जमातों ने मजम्मत की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और LG मनोज सिन्हा के साथ PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर इस मामले की मजम्मत की, जबकि मीरवाज उमर फारूक ने भी एक्स पर मरने वालों के अहल खाना से ताज़ियत की। कारोबारी तंजीमों और सयाहत से वाबस्ता तंजीमों ने भी धमाके की मजम्मत की। और दूसरी जानब कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, इस मामले की मजम्मत की और मरने वालों के ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। मैं कहूँगा हम सब बिजनेस फर्टर्निटी छोड़िए, आप सब लोग इसका कंडम करते हैं। जो ये इनह्यूमैन एक्ट है या इंसानियत का कत्ल है, एक इनोसेंट आदमी को मारना, ये किसी मजहब में इजाज़त नहीं देता है, खासकर इस्लाम इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते हैं। देखिए, कश्मीर चमड़ा कॉमर्स इंडस्ट्री ने पहले ही इस वाक़या की कंडेमनेशन की है और इसमें जो कीमती और इनोसेंट जानों का ज़िया हुआ है उसको हमें काफ़ी अफसोस है। हम दुआ करते हैं कि जो ज़ख्मी हुए और उनकी जल्द से जल्द वो सेहतयाब हो जाए। और ये तो बहुत दुख की बात है कि इस लेवल का ये ब्लास्ट हो जाए मार्केट जगह। और हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इसमें जो मुलविस हैं उनको कैफे किरदार तक जल्दी पहुंचाया जाए। कल दहशतगर्दी का एक शर्मनाक वाक़ा दिल्ली लाल किला के करीब रोनुमा हुआ। बहुत सारे लोग जान बहक हुए और 20 से करीब लोग ज़ख्मी हैं, जो इस वक्त मौत व हयात की कशमकश में हैं। जम्मू कश्मीर का हर फर्द इस हरकत की मजम्मत करता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि किसी बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। दिल्ली धमाके के बाद और मखसूस इंटेलिजेंस मालूमात के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने ज़िला कुलगाम में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की। SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी की हिदायत पर DYSP हेडक्वार्टर निसार अहमद और SHO कुलगाम सब्जार अहमद की निगरानी में लारू कुलगाम क्रॉसिंग पर टीमों ने सख्त चेकिंग की, तलाशी ली और सिक्योरिटी फोर्सेस ने गाड़ियों का अच्छी तरह मुआयना किया और मुसाफिरों के इसनाद की तस्दीक की, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इलाके में कोई मशकूक नक्ल हरकत न हो। अनंतनाग और कुलगाम पुलिस ने दोनों अजला समेत जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर हाई अलर्ट जारी करते हुए सिक्योरिटी बढ़ा दी है। नेशनल हाईवे और अहम मकामात पर गाड़ियों की तफसीली जांच की गई और आर्जी नाके कायम किए गए। सीनियर अफसरान ने कार्रवाई की निगरानी की ताकि ट्रैफिक मुतासर न हो और आवाम की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। पुलिस का कहना है कि इक़दाम आवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ और अस्करी ख़तरात की रोकथाम के लिए जारी किए गए हैं। अमन कानून
की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने और सिक्योरिटी इक़दामात को मज़ीद मज़बूत बनाने के मकसद से अनंतनाग और कुलगाम पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर बिलखसूस जम्मू श्रीनगर कौमी शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर वसी पैमाने पर व्हीकल चेकिंग ड्राइव्स अंजाम दी। तमाम मुस्तकिल नाके फाल रहे जबकि इजाफी आरजी चेक पॉइंट्स भी अहम मुकामात पर कायम किए गए ताकि मुश्तबा अफराद और गाड़ियों की नकलो हरकत पर करीबी नज़र रखी जा सके। चेकिंग के दौरान पुलिस टीमों ने गाड़ियों के दस्तावेजात, मशकूक सरगर्मी और किसी भी गैर कानूनी सामान की जांच की। सीनियर ऑफिसरान ने इस कार्रवाई की ज़ाती तौर पर निगरानी की ताकि तमाम नाका पॉइंट्स के दरमियान बेहतर हम आहंगी और ट्रैफिक की रवानी जो है बरकरार रखी जा सके। ड्राइवर्स का मकसद गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम, रोड सेफ्टी को फ़रोग देना और ज़िला भर में आवाम के तहफ़्फ़ुज़ व सलामती को यकीनी बनाना है। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा से मुनसिफ टीवी के लिए गजाला निसार। पुलवामा पुलिस ने दहली ब्लास्ट और फरीदाबाद केस से मुतल्लिक़ तहक़ीक़ात के सिलसिले में ज़िला पुलवामा से 4 अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया। दहली ब्लास्ट केस में संबोरा के आमिर रशीद और उनके भाई उमर रशीद से तफ्तीश जारी है। आमिर के अहल खाना ने इसके मुलविस होने की तरदीद करते हुए कहा कि वो कभी वादी से बाहर नहीं गया। पुलिस दोनों केसों की जांच जदीद साइंसी तरीके से तहक़ीक़ात कर रही है। मीडिया में जो फोटो आ रहा है ना, उसका जो तारिक नाम बोल रहे हैं, एक्चुअली जो उसके साथ मैच हो रहा है, जो फोटो के साथ मैच हो रहा है, उसका नाम आमिर है, उसका तारिक नाम नहीं है। और वो दिल्ली कश्मीर से बाहर कभी गया ही नहीं है। ठीक है, प्लम्बर का काम करता है, वो घर में होता है, वो ये भी यहाँ पे आसपास के गाँव में ही काम करता है। तो इतना हमें पता है। बाकी तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी हम पुलिस के पास जाएंगे, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरा सच सामने आ जाएगा। कुछ करान इलेक्ट्रिक काम उमर नान सुबह फाक बिचर शाम और वापस ना नबर गसान गर कहन मे बच्चे 2 बीस बह मे मा त्रा कुन जन गर तो पान नान दहली कन यमिस गई 4 वरी मेनिस बच्चस नबर मे त्रोमुत यह डॉक्टरी करने मे बूज रात पे ये नत रात दमस तान पाई कहें यह क्या दलील यह क्या नत पाई पैगामा कहें दहली गुड़गांव अलफला कॉलेजस मज पढ़ान मे पता मे त्रोमुत डॉक्टरी करने बस वोम मे पाई पैगामा नत कुन रात पे आ गई यह आफा अस बूज यह तो मन लज अस पता यथ कन दलील मे गहवर रचम मे यह रुहन बनोमुत जमीनस मे या 4 वरी गईस तौर। पुलवामा के मुस्लिमपुरा बंगम के रिहायशी डॉक्टर उमर अन्नबी जो अल्फला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में प्रोफेसर थे, दहली धमाका केस में ज़ेर तफ्तीश हैं। CCTV फुटेज में धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार डॉक्टर उमर के ज़ेर इस्तेमाल दिखाई है। पुलिस ने उनके 2 भाइयों और वालिदा को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया। इस केस में पुलवामा के डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला से भी तफ्तीश जारी है। लास्ट फ्राइडे को उसने हमें फ़ोन किया, हमने नहीं किया। हमने बातचीत की, हाँ सलाम दुआ बस। कहा कि घर आ जाओ, उसने कहा कोई बात नहीं मैं आ जाऊंगा 2-3 दिन के बाद। कि मैंने नहीं माना, मैंने कहा भैया अब कल ही आ जाओ ना। उसने नहीं माना, उसने कहा कि नहीं 2-3 दिन के बाद, मैं बिजी हूँ, मैं लाइब्रेरी में तैयारी कर रहा हूँ एग्जाम की। 1.5 साल से वो बाहर थे, 1.5 साल से फरीदाबाद 33 प्लस प्रोफेसर, एज अ प्रोफेसर वो वहाँ काम कर रहे थे। ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मैंने कहा ना, लोग तमन्ना करते होंगे कि ऐसा बेटा हमें भी मिल जाए, दुआएं करते होंगे नमाजों में कि ऐसा बेटा हमारे पास भी हो, जैसा उमर नबी था, जैसा उमर नबी है। मैं प्रेजेंट की भी बात कर रही हूँ कि जैसा उमर नबी था भी और है भी। नेचर का वो बहुत अच्छा इंसान था। हमको जब पुलिस आई मेरे शौहर को लेगी तब से पता चला है, थोड़ी सी हमें लगा थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट है शायद, मतलब सस्पेक्टेड पर्सन है, हमें लगा सस्पेक्टेड पर्सन होगा, नथिंग मोर। तो अब जब सवेरे मीडिया आ गई, मीडिया के थ्रू हमें पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। हाँ उसी के बैच का था शायद, मुझे पूरा पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने सुना है शायद उसी के बैच का था। पर हमारा उनके घर ना उनका हमारे घर आना जाना नहीं। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।